गुड इवनिंग एंड वेलकम टू गना शॉट। गना शॉट में आप सबको स्वागत है। आज हम एक डिफरेंट किस्म के एपिसोड करने वाले हैं। नॉर्मल जियोपॉलिटिक्स नहीं, नॉर्मल ये मिलिट्री नहीं। टुडेज एपिसोड इज अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ जियोपॉलिटिक्स, हिस्ट्री and the military. Right. So what are we going to talk of? We're going to talk of exercise Buland Bharat. How PLA has been blocked at SAKTEng. Some might not even know कि SAKTEng क्या है. बहुत लोगों को ये भी नहीं पता कि SAKTEng क्या है. Right? ये एक्सेस बुलंद भारत है, इंडिया टुडे का है. मैं भी 2 मिनट में आप सब लोगों को बता दूंगा. ये थोड़ा हटके आया आज का. Actually, कुछ दिन पहले I saw these tweets from Gajraj Corps, which is 4 Corps, in charge of Arunachal. अगर आप देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि they had institutionalized firing at the longest and the highest high altitude artillery range. And जो बाएं वाले पिक्चर है उसमें साफ नजर आ रहा है कि all religious teachers of all castes are inaugurating, पूजा कर रहे हैं जिस तरीके से फौजी तरीका है before you start an event. And the right shows a gun firing. And the 4 Corps has also put out a tweet to say we train hard, we strive to continuously raise our standards and enhance focus on accuracy, quick reaction, and massive response. Fantastic. That's what I expect my Indian Army to do. But there's something more. It is something more because the moment I saw Mandala ranges and high altitude, a lot of things came to my mind. And a lot of things came to my mind because I have very deep connect with all of this that I'll come to a little later. And then, of course, we saw these two. I mean, there's a media blitz. It's come on TV. India Today on the right says Buland Bharat Army surveillance firepower training it conducted in Arunachal. Another, I think, Times का है left वाला. ये बोलता है कि synergized application of surveillance and firepower capabilities of the artillery and infantry in coordination with special forces, aviation, central armed forces deployed in West Kameng and Tawang districts. Right. और बहुतों ने बहुत ये दिखाया. Let me show what actually happened. Yeah, they fired Bofors there. Right. So what you saw, आपने जो देखा है, that was the firing of Bofors and the Indian field guns from the newly commissioned Mandala range. Mandala range. Okay. What's this all about? इसका कहानी क्या है? सिर्फ ट्रेनिंग है या कुछ और है? Right? This is what I want to put across in today's thing. You have to step out of that whole place and look at the northeast. जब आप नॉर्थ ईस्ट को देखेंगे, ये है भूटान बीच में है. On the left is Sikkim, right? दाहिने साइड है अरुणाचल प्रदेश और जो डॉटेड लाइन है वो मैकमोहन लाइन है. और तवांग मैंने दिखाया. तवांग के जो नीचे जो रेड डॉट है, that is this place where this firing took place. So that's the larger picture, right? So I see a question, sir, is this connected to the SEO summit? It is and it is not. It is connected to a larger thing which we'll come to a little later. Okay. Now let's zoom in. But before I zoom in and I,
look at anything else, you have to understand the larger picture. What is the larger picture? क्या है? जैसे आपको पता है इस मैप में मैंने दिखाया है, these are the areas of incursion or claim by China. There's a geopolitical angle in this whole story. जैसे आपको पता है कि China has encroached into Bhutan in Doklam about 269 kilometers. There are two other areas called Jakarlung and Pasamlung in the north. That's about 495 square kilometers. And they have laid claim to this place called SAKTENG Sanctuary, where I have shown. And that's about 100 kilometers in depth. Okay. And when did this claim come about? देखिए, ये it was widely reported, even BBC reported XYZ. China lays claim to Bhutan SAKTENG Sanctuary with strategic eye on Doklam. India keeps hawkeye. Right? Okay, this came in 2020. And it was a surprise. इससे पहले there was no claim on SAKTENG. Nothing. It just came out of the blue. Okay. Now, what is this all about? This is SAKTENG. It's a beautiful valley, a lot of flat area there and all that. And actually, जब 2020 में I was doing analysis of the Eastern Ladakh situation, when this happened, and with my local knowledge of the area, because I've served there, and like I told you, I have a deep connect out there, which I'll tell later. Something thing, and then I started analyzing it. Now, what is this analysis? You have to look at it. If you see, China is very smart. वो बहुत तेज है चाइना. डोकलम में इन्होंने इंकर्शन किया. Why are they trying whatever they are trying at डोकलम? ताकि ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो एक ब्लू डॉट में है, सर्कल में है, उसके ऊपर कब्जा करने के लिए, उसके ऊपर हवाई होने के लिए. Their strategic claim that they can sever India from the rest of northeast. आप दाहिने देखिए, if they get hold of SAKTENG, then what happens? Their claim on Tawang and Arunachal Pradesh gets reinforced. In fact, अगर SAKTENG में आके चाइना वाले बैठ गए, तो complete Tawang is, what shall I say? It's turned around. उल्टा हो गया. मतलब दुश्मन आप सामने देख रहे हो, ये पीछे आके बैठ जाएगा. So, major issue, SAKTENG. So, we'll come to SAKTENG a little later. Okay, let's zoom in. जो right में top में आप insert देख रहे हो, वो ये है. अभी ये इसमें देखिए, ये तवांग is in the center. उसके ऊपर बुमला है और उसके ऊपर केंजमाने है और ये तुलुंगला है. All these are actually on the blue line, which is the LAC. What I've shown to highlight a little lesser, to the south. Now you see SAKTENG where it is. All sits behind. Now all our defenses are ahead of Kansamane, Bumla, or on Tulungla. And SAKTENG, he'll come and sit behind us. That's the idea. Now I'll take you back. I'll have to take you back into time. If you see Kansamane now on the LAC, Bumla on the LAC, and Tulungla on the LAC. Now in this entire McMahon line, which is the blue line, जो तीन रास्ते हैं, सोनाजोंग, वो जो उनका मेन हेडक्वार्टर है, वो अपने इसमें कुआना भी बोलते हैं उसको, वहां से तीन रास्ते आते हैं. एक रास्ता आता है जो बाएं एरो, वो केंजमाने में आता है, बीच में वो बुमला में आता है और राइट में तुलुंगला में आते हैं. उसके अलावा कुछ और पासेस हैं जो जैसे यांगसे है, जहां झड़प हुआ दिसंबर में, वो बुमला के राइट में है. केंजमाने वो रास्ता है जिसमें दलाई लामा आए थे 1957 में. और केंजमाने के बाएं जो इलाका है उसको बोलते हैं तागला और हतुंगला रिज. और तागला रिज के ऊपर 1962 का प्रॉब्लम हुआ था, जहां हमें परास्त होना पड़ा. They came through Bumla also, and they came through Tulungla also. Okay, in 62. Okay, how did they come? They came in on the left through Kenzamane and the Tagla Ridge. They overwhelmed the battalion which was deployed there, and then came further to the south, outflanked Tawang. They came and took over Tawang. All this happened around the last week of October. Within a week, all this was over. And they came through Tulungla also.
But this Tulungla thing is important. Okay. Now, how you see the red arrows? They came via Tulungla. They came down to a place called Mago. From Mago, they went to the east की तरफ गए और वहाँ 62 का रास्ता जो मैंने देखा है, वहाँ एक जगह है जेरेला, जेरेला से नीचे उतर के आए पुशिंगला, पुशिंगला से वो आए एट अ प्लेस कॉल्ड सैपर. ओके, अभी ये जो सैपर के नीचे जो रेड लाइन है, दैट इज द वो रोड है तवांग से लेकर बोमडिला तक नीचे, और नीचे फिर वापस आ जाता है टू द प्लेन्स ऑफ असम. ये एकमात्र रोड है उन दिनों में, अभी भी वही एक रोड है. हालांकि एक और अलाइनमेंट बन रहा है उधर शेरगांव नामक जगह के थ्रू. पर ये इन्होंने क्या किया, जब तवांग के ऊपर केंजमाने और बुमला के ऊपर से अटैक हो रहा था, एक टोली इन्होंने भेज दिया चाइना में 62 में, तुलुंगला के थ्रू मागो आए, मागो से स्कर्ट करके पुशिंगला आए और सैपर में आके एक रोड ब्लॉक लगा दिया, इसीलिए एक क्रॉस लगाया. और नुकमाडोंग नामक एक जगह है, वहां भी आके इन्होंने रोड ब्लॉक लगा दिया. जब रोड ब्लॉक लगा दिया, और ये तकरीबन लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर हो गया, आगे जो है वो दे वर अटैकिंग फ्रॉम द फ्रंट एट केंजमाने एंड जैसे ये मैं दिखा रहा हूँ, 2 एरो हैं आगे सामने कट, वो दे वर अटैकिंग फ्रॉम द फ्रंट और पीछे रोड ब्लॉक हो गया था. और इसकी वजह से हमारे जो फौज है दे पैनिक्ड. एंड दिस इज हिस्ट्री, ये कोई नई चीज नहीं है, ये हिस्ट्री है. और जो सेला का गैरिसन है, सेला वाज देयर, वो पूरा एक ब्रिगेड था, और वो इतना पैनिक हो गया कि वो बना बनाया जगह छोड़ के चले गए. अभी मैं आता हूँ कनेक्ट मेरा सेला में जो गैरिसन में जो रेजिमेंट था, हमारा रेजिमेंट था आर्टिलरी रेजिमेंट, और आगे जो एक बैटरी भी गया हुआ था वो भी खत्म हो गया था. और जो सेलाक में जो बाकी रेजिमेंट था उसमें भी एक बैटरी खत्म हो गया था, क्योंकि सब भाग गए. उन दिनों के हमारा जो सीओ साहब है उन्होंने बोला कि भाई भागो मत, पर तब तक इतना कलबली मच गया, इतना पैनिक मच गया, सब भाग गए. हमारे सीओ साहब भी वहां शहीद हो गए. राइट. ओके, तो ये आज का ये जो बात है, ये साक्तेंग है, ये मंडाला के बारे में, इससे क्या लेना देना है. जब इन्होंने साक्तेंग के ऊपर when they put their claim, I'll go back and explain, they were not fools. साक्तेंग के ऊपर when they put that claim, they were actually क्या है, वो वही कर रहे थे जो making way for another envelopment to happen this way. Okay, now we'll go back to that. ये देखिए, ये बाएं जो है मैंने पीला एरो में दिखाया है, वो अगर चाइना वहां से आ सकते हैं, वहां एक जगह है ताशिग्रांग जोंग, राइट. वहां से लेकर अगर साक्तेंग में आ गए और साक्तेंग से अगर निकमाडोंग में आके बैठ गए तो इट विल बी अ रिपीट. और जहां तक मेरे ख्याल है, ये जो साक्तेंग में जो इन्होंने ये जो राइट व्हाट देखिए यही है, साक्तेंग में जो क्लेम किया है वो इसीलिए है. फ्रॉम इफ दे गेट होल्ड ऑफ साक्तेंग, साक्तेंग से दे कैन गेट टू न्यूकमाडोंग एंड दे माइट नॉट गो टू सैपर टुडे. बट अगर न्यूकमाडोंग में जाके उन्होंने अगर एक रोड ब्लॉक लगा दिया तो ऑल आवर फोर्सेस ऑन टॉप कैन गेट कट ऑफ. पर इट्स नॉट सो इजी. आजकल अगर साक्तेंग में इनको पहुंचना है तो 100 किलोमीटर दूर है, राइट. वो ऐसे एक टोली नहीं आ सकता, सो दे हैव टू डू अ एयर ड्रॉप. वर्चुअली इन दैट साक्तेंग आपने देखा, इन दैट अर्लियर थिंग इट वाज क्वाइट अ फ्लैट पीस ऑफ ग्राउंड वेयर यू कैन डू एन एयर ड्रॉप. सो लॉजिकली व्हाट दे विल डू, दे विल डू एन एयर ड्रॉप and then ground forces will come through that yellow line arrows which I put, come up, marry up at Sakteng, and then in the meanwhile simultaneously they'll attempt to put a block at Nukmadong. That means they want to hit us from the rear, and all this while we will be looking forward and these chaps will be doing it behind, and they will pressurize thing.
इनका क्या है कि इन 2020 व्हेन दिस थिंग केम, सडनली इट केम आउट ऑफ द ब्लू, किसी को ये नहीं पता था कि ये क्यों क्लेम कर रहे हैं। ये देखिए, चाइना वाले इतने तेज हैं, उन्होंने व्हेन जब भूटान गए थे टू इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के पैसे के लिए टू डेवलप साक्तेंग सेंचुरी, तो चाइना वालों ने मना कर दिया कि भाई ये तो हमारा इलाका है, आप इनको पैसा क्यों दे रहे हो। और तब जाके अभी नया सिलसिला इन्होंने शुरू किया था। पहले तो किसी को पता ही नहीं था कि क्यों ये कर रहे हैं, ये वगैरह सब सोच रहे हैं। आज तक सब मोटे मोटे तौर पर ये सोच रहे हैं कि ये सिर्फ वो क्लेम है, बट क्लेम किस लिए है? टू आउटफ्लैंक तवांग। पीछे जस्ट द मिरर इमेज 62 में तुलुंगला के थ्रू आए, मागो पुशिंगला के थ्रू, आज के दिन यहां से आ सकते हैं। आप सोच सकते हो कि सर आप तो अभी ये कल्पना कर रहे हो, नहीं, ये बात जो है ना 2020 में मैंने लिखा है, इट्स देयर, मेरे गनर शॉट के इसमें आप देखिए, और ये पूरा इसका वर्णन किया मैंने एक आर्टिकल में। और उस वक्त एक मेरा साथ जो एनडीसी किया, उन्होंने ये कोर कमांड किया था, उनको मैंने दिखाया कि भाई ये हो सकता है, उनका राय था या हाँ ये हो सकता है, राइट। पर उससे और ये साक्तेंग से और ये 1962 के हिस्ट्री से आज ये फायरिंग का क्या संबंध है? यही है आज का जो मेन थिंग, राइट। ओके, ये जो गन्स जहां डिप्लॉय हुए हैं, राइट, ये जो फायरिंग दोबारा दिखाता हूं आपको। ये जो फायरिंग हुआ है, वो ये जो गन्स लिखा हुआ है ना, उस इलाके से हुआ है, ये पहले कभी नहीं था वहां। और जो फायर किया है वो फायरिंग एरिया है, राइट, जहां गोला गिर रहे हैं। और साक्तेंग देखिए कहाँ है, उसी लाइन में है, उसी दिशा में है। इससे क्या है कि अगर चाइना वाले आके वहां हेली ड्रॉप करके या पैरा ड्रॉप या एयरबोर्न ऑपरेशंस भी करे वहां है, तो ये अगर हमारे पास ये काबिलियत है आज के दिन, ये मंडाला फायर फायरिंग रेंजेस स्थापित करने के बाद, कि साक्तेंग के ऊपर हम फायर कर सकते हैं, और चाइना का जो मिलिट्री ऑप्शन है उसको हम नाकाम कर सकते हैं। हाँ, क्लेम तो चलता रहेगा, वो वाद विवाद होता रहेगा, बट इसका मिलिट्री ऑप्शन हमारे पास है, वो ब्लॉक हो गया है। मीडिया में तो ये आया ट्रेनिंग, सर्वेलेंस एक्सरसाइज वगैरह वगैरह वगैरह, पर मेरे हिसाब से असली जो फायदा है ये है, राइट। सो इफ यू सी, इससे पहले हमारे पास ये काबिलियत नहीं था, तो वल्नरेबल है थे, राइट। जो रेड लाइन है, दैट इज द रोड फ्रॉम बॉम्बडिला टू तवांग, ये कहीं नहीं कट हो सकता। अगर ट्राई भी करेंगे तो अगर हमारे पास काबिलियत है कि वहां गन्स हम डिप्लॉय कर सकते हैं, राइट, तो हम फायर करके उनको खदेड़ सकते हैं। इन 1962 हमारे पास ये मौका नहीं था। 1962 में नुकमाडोंग में जो ब्लॉक लगा था, दोबारा दिखाऊंगा वो आपको। ये 1962 में जो नुकमाडोंग में जो ब्लॉक लगा था, उसकी वजह से पूरा पैनिक हो गया। आज के दिन वो पैनिक का नौबत ही नहीं है, क्योंकि हम जो भी फोर्सेस, चाइना का फोर्सेस पीछे से आएंगे भूटान के जरिए थ्रू साक्तेंग, वी कैन फायर ऑन देम। इनफैक्ट द मोमेंट यू कम टू नो, नॉट ओनली हम ये दोबारा दिखाएंगे, ये not only can we fire from the high altitude ranges areas of where these guns are come, ये mandala firing ranges का gun areas है, along the road also you can deploy and fire. So today
this firing has got tremendous output beyond the whole thing. And that's what I wanted to put across. Right? Okay, so this is what Gajraj Kaur has done. So what's the big deal? What's the big deal about exercise Buland Bharat? The thing about exercise Buland Bharat is सबसे पहले our gunners, our infantry people, our CAPF और हमारा जितने वहाँ फौज है, they are fully trained in high altitude. You fired in high altitude. Okay, and I've seen firing of the PLA and our firing different, completely different. We are practical, and our side of the LAC is a more difficult area to fire from than the other side. If you can fire here, you are good. दूसरी बात, मैसेजिंग, हमने साफ बता दिया कि हम फायर कर रहे हैं. अमूमन हम देखते रहते हैं कि PLA के फायरिंग का पिक्चर्स वगैरह आता है, पर पहली बार हम दे रहे हैं उनको पिक्चर्स के भाई हम भी फायरिंग कर रहे हैं, हम भी इंटीग्रेटेड एक्सरसाइज कर रहे हैं, सर्विलेंस कर रहे हैं, हमारे पास ये काबिलियत है. मैसेज, और ये LAC के बिल्कुल नजदीकी है, तो उनको पता है कि अरुणाचल प्रदेश में जो सब हमसे पूछते रहते हैं कि सर दे हैव नेम प्लेसेस इन अरुणाचल विद चाइनीज नेम्स, उससे क्या लेने देना, करने दो मेरी तरफ से वो किसी भाषा में लेके, पर कब्जा तो हमारे पास है. अब कब्जा हमारे पास ही नहीं है, ये फायरिंग के बाद हमारे पास भूटान के ऊपर भी वी कैन प्रोटेक्ट देम. With a little imagination, they can't enter Bhutan. I'm sure, I don't want to tell all that. I'm sure जो वहाँ के ऑफिसर्स, अधिकारी और जवान और गनर्स कर सकते हैं. दूसरी बात, ऑपरेशनल रेडीनेस टू टैकल PLA हम कर सकते हैं. वो ऑप्शन, मिलिट्री ऑप्शन ऑफ सक्तेंग खत्म. चाइना का देखिए, इनका सलामी स्लाइसिंग कैसे होता है. पहले स्टेज ऑफ सलामी स्लाइसिंग क्लेम करो, दूसरा एक दिन आके वहां बैठ जाओ, तीसरा कुछ और करो, उलट दो सब कुछ. तो वो ऑप्शन भी नहीं है, वो सलामी स्लाइसिंग ऑप्शन भी नहीं है अभी. राइट, यू आर प्रिपेयर्ड. Okay, so you have closed this SAKTENG option in war. Peace, what happens? वो अलग बात है. Right. Last point, confidence to the nation. जो हम सबको ऑफिशियली जो बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं, पर मेरी तरफ से तो ये तो बड़ा सॉलिड कॉन्फिडेंस है. सब लोग हमसे पूछते रहते हैं, सर क्या हम कर सकते हैं PLA के सामने. भैया PLA को तो हमने डिस्टेबलाइज कर दिया इस इलाके में. आप लोगों को शायद पता नहीं है, मेरे को पता है, मैं ओल्ड गनर हूं, मेरे को पता है ये कोर कमांडर क्या सोच रहा है हमारा, वो दिव कमांडर क्या सोच रहा है, वहां का आर्टिलरी कमांडर क्या सोच रहा है. एंड आई वुड लाइक टू कॉम्प्लीमेंट ऑल ऑफ देम फॉर दिस वंडरफुल थिंग व्हिच दे हैव डन. स्मॉल एक्शन, बिग रिजल्ट. ये तो एक नमूना था. हमारा इंडियन आर्मी इज वेरी टफ. देयर इज नो टफर आर्मी देन द इंडियन आर्मी. जिस दिन चीन आके ट्राई करेगा हमारे साथ, दे विल गेट इट. दैट इज व्हाट दिस बुलंद भारत इज ऑल अबाउट. अंडरस्टैंड दैट. हम कुछ भी बात कर सकते हैं कहीं भी, बड़े बड़े बात, चाइना का पावर ये है, वो है, पर ऑन ग्राउंड विल डिफीट देम. I have no doubt. And my sincere thanks to the Chief of Army Staff, GOC in the Eastern Command, GOC Gajraj Kaur, GOC of the division there, and the artillery commander who made this range and who carried out firing, and all my gunners. उनको तो मैं छोड़ नहीं सकता ना, वो तो मेरे दिल के हैं. Right? Congratulations. Right. I'll take on questions now. I have a lot of time.
Okay, there's been a short presentation with a purpose. So all questions, right? And shoot your questions. I'll